Thank you very much. The session is going to be recorded now. I welcome everybody to this virtual class. Let me know my voice is clear. You people can hear me properly. Is this okay with everybody? Yes, sir. That's great. Isha, would you please open up your camera if you don't mind? Let me see you. Is it okay with you? Is it convenient? Sir, Sir, अभी I'm I sorry if I don't. cannot. Sorry, I couldn't get. I mean, Aisha and Isha Sir, I both said was I cannot do it right now. okay, right. How about That's okay. how about Aisha? Aisha, would you do that or not? Sir, I'm sorry. I'm sorry. I didn't know Okay, you. right. In fact, आप करवाएंगे. I'm sorry. right. No problem. I was just going through your reading, like I mean, your college that has given me few important instructions about the class, and in which this written very clearly. In fact, I was not went through it previously. So I never asked, I mean, students to open up the camera. But yesterday I was just reading out, students would keep their camera on and mic off. In case any student needs to raise a question or share an opinion during class, they would use the raise hand tab to alert the tutor. So this are, I mean, your colleague is asking the camera of students that should be on. That's why I'm asking, right? सर वो पहले दिन सबने ऑन कराया था लेकिन उसके बाद नहीं किसी ने ऑन करवाया. uh, that's again up to you. Better if I can see you people can see me, so there would be nice, face-to-face interaction. Though this is virtual, but that is okay for understanding. I mean, it's not boring when I'm seeing you. You people are seeing me, so that's good. So I mean, nothing bad in it. Sir, If कल you से do करिए. that. No problem. You don't mind. कल से करिए. It's again up to you. No problem. So going through the course contents we have started yesterday, and let me share my screen so that the lecture that should be started formally. Just give me a minute, and let me find out the things I can show. Here is the book. Oh, right. I have shared my screen. Are you people seeing this? Yes, sir. That's nice. So we were going through the basic concept of marketing, the definition of marketing, and we have gone through few definitions by CIM. When I speak CIM, that means Chartered Institute of Marketing, right? And when I speak AMA, that is American Marketing Association. So we discussed that marketing is a management process. We talked about that marketing is about giving customers what they want, and marketing identifies and anticipates the customer requirements. So we came to know that marketing is revolving around the customer requirements, customer needs, identification of those, and anticipation of those needs. So that's how marketing works. That's how marketing is, right? So then we went through the basic exchange process, right? But there is company, there is customer. I mean, of course, there is exchange process. When we say there is exchange process, it means there are two parties. You know, one party cannot exchange anything. I mean, you are the customer, right?
So if there is no company, there is no organization. So you cannot exchange with consumers and organizations. So for exchange process, there must be two parties, and there must be some product or service to exchange with each other, right? These are the criteria for the exchange process, that there must be two parties, number one. Number two, there must be a product or a service to exchange with each other. Number three, there must be a willingness to exchange the products and services, right? So if these three criteria are met, it means there is a legal exchange process. For example, I can snatch something from you, right? So you cannot do that because it's not legal, because you are not willing to give me your product. So whenever you buy an iPhone, you pay 100,000 rupees, 150,000 rupees. So you are willing to buy a mobile phone from a retail outlet, and he is willing to sell you that phone. So there is willingness, and that is the retail outlet. This is you, and these are two parties, and there is a product, which is iPhone, that is going to be exchanged. Right? So that's how we have seen, the exchange process of Pepsi company. Then we talked about the private hospital and a patient. Then we talked about the university and a student. Right? That's how, there are many companies, public library and reader. So they pay the taxes. I mean, libraries, public library is a government institute. So government charges taxes from the citizens, and they offer different services against those taxes. So there is always an exchange process. Now, the wider definition of marketing. As we go ahead, the concept that gets broader and wider, right? So marketing basically is a science, right? Marketing is a gigantic process. Marketing is a name of planning, strategic rather. So let me admit. Thank you, Vada. You have joined the class. You're a bit late. Try to be on the line on time, please, so that we can cover up the learning outcomes, in a timely way. Right. So the wider definition of marketing. Marketing is to establish, maintain, and enhance relationship with the customer. So we were talking yesterday that there is a relationship between you and company. You're using an automobile. There is a relationship between you and Honda, between you and Toyota. Right. You are using a shampoo. There is a relationship between you and Head and Shoulders, Unilever, Procter and Gamble, जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो वो relationship जो है with customers and other partners at a profit. Profit is important because you are getting value, right? And company is again getting value. So if you're not getting value, company is not getting value, so relationship is not profitable. If relationship is not profitable, that means there is no relationship. That means the relationship cannot go longer. So there is a short-term relationship. Relationship is always longer because once you have bought a brand, once you are stuck with certain brand, once you are loyal to a certain brand, it means the relationship is good, that would be maintained for a longer time. And that's what company is looking for, and that's what customer is looking for. So the objectives of the parties involved are met. दोनों objectives का हमने वो करना होता है. The development of marketing. If we look up to the historical perspective of marketing, कि marketing कहाँ से आई, marketing कैसे शुरू हुई, marketing का जो modern concept है, वो कहाँ से शुरू हुआ था? I'm sorry, this phone. So, तो उसमें हम ये कहते हैं, ये वो बातें, the basic idea of marketing as an exchange process, इस पे हम बात कर चुके हैं, exchange process details. Business orientation में वो ये बात करेगा कि marketing का concept कैसे emerge हुआ. इसकी थोड़ी सी चीजों को देखते हैं. The first orientation was production orientation. Orientation means your, focus. Traditionally, there was no concept of marketing. I mean, people, they were familiar with the production concept only. A production concept kya tha? When your prime focus of your business, of your organization, of your company, that was on producing the things, manufacturing the things, right? हमारे लिए सबसे बड़ा मसला क्या हुआ करता था कि यार चीजों को प्रोड्यूस कैसे करना है, because टेक्नोलॉजी नहीं थी, right? Skilled human resource नहीं था, right? सारे रिसोर्सेज जो एक अच्छी प्रोडक्शन के लिए चाहिए होते हैं वो अवेलेबल नहीं थे. आप जब पुरानी गाड़ियों को देखते हैं, Osama is very he's famous for his love for the different cars and automobiles. So I'm giving you the example. अब पुरानी को 1970, 80, 90 के
के मॉडल्स देखें गाड़ियों के तो वो ज़रा डिफरेंट शेप्स थी। अगर आज आप कोई सिविक होंडा की देखें राइट, अभी वो दोबारा उसको भी वो रीडिज़ाइन करने जा रहा है, या आजकल और बहुत सारी गाड़ियाँ तो चाइनीज़ ब्रांड्स मलेशियन ब्रांड्स आ रहे हैं, और आज की गाड़ी आज से 10 साल पहले की गाड़ी से बहुत डिफरेंट है, उसके फीचर्स बहुत डिफरेंट हैं, उसकी एस्थेटिकली दैट्स मोर अपीलिंग टुडेज जो कार है। और उसके अंदर वो देखें वो ट्रैक्शन कंट्रोल और इसके अलावा जो है मतलब लाइक एयर बैग्स और सेफ्टी फीचर्स, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती गई, उनके कलर्स की वैरायटी आ गई, उसकी शेप डिफरेंट होती गई, राइट। पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि पहले चीज़ों को बनाना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। सो द फोकस वाज प्रोडक्शन बिकॉज देयर वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज, हाउ टू प्रोड्यूस द थिंग्स, हाउ टू मैन्युफैक्चर द थिंग्स। So there was one orientation, there was one focus of the company, there was one problem for the companies. ये एक पुरानी बात है, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हुआ करता था। देन द प्रोसेस वेंट ऑन, हम क्या आ गए प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग पे आ गई, तो आपने कहा कि यार एक प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन एज्यूम दैट द कंज्यूमर्स आर प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट इटसेल्फ। उनका कि यार ठीक है प्रोडक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट भी कुछ इस काबिल हो, राइट, कि वो किसी काम की हो, उस प्रोडक्ट का खूबसूरत होना, उस प्रोडक्ट का अच्छा होना, उस प्रोडक्ट का डिफरेंट फीचर्स कंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है। हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या कर रहे थे कि वी वर सपोज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स एट द लोअर कॉस्ट, राइट, क्योंकि हमने सारा जोर क्या लगा दिया था कि यार हमने 10,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हमने 10,000 प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, तो और फोकस वॉज कि हमने 15,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो ठीक है जी, हमने उस पर मटीरियल डालना शुरू कर दिया, हमने उस पर टाइम इनहेंस कर दिया, हमने उस पर लेबर लगा दी, हमने वो उतने वाले प्रोडक्ट्स बना दिए। हम क्यों नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ाते गए, वी विश टू लोअर डाउन द पर यूनिट कॉस्ट, राइट। अगर मैं 10 चीजें बनाता था, तो मैंने जब 15 बनाई तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई। दैट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आप लोग है ना, इकोनॉमी ऑफ स्केल, दैट्स नोन एज इकोनॉमी ऑफ स्केल। समझते हैं ना कि जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ते हैं, तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। इज दैट इजीली अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. Yes. तो अच्छा, अब प्रोडक्ट ओरिएंटेशन में हमने कहा कि ठीक है यार, हमने सस्ती प्रोडक्ट प्रोडक्शन तो करना शुरू कर ली, लेकिन वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया वो सस्ता बन गया, बट वाज दैट गुड इनफ कि यार कस्टमर का इंटरेस्ट भी उसमें हो, कस्टमर उसको खरीदने का भी कोई जहन बनाए। तो हमने फिर सोचना शुरू किया, द मैनेजर्स, द कंपनीज, द ऑर्गेनाइजेशन, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि यार प्रोडक्ट ओरिएंटेशन पे है, हमारी प्रोडक्ट का भी कोई उसका कोई आउटलुक होना चाहिए, उसके कोई अपने फीचर्स होने चाहिए। सो दैट वाज अगेन a few era जिसमें मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस और सीईओज और डायरेक्टर्स और कंपनी के मालिकान ने और इन्वेस्टर्स ने ऐसा सोचना शुरू किया। जब इससे हम थोड़ा सा और आगे आए तो सेल्स ओरिएंटेशन आ गई, ठीक है, आई एम हियर, दैट्स इट। तो सेल्स ओरिएंटेशन हमें क्या कहने लग गई, तो इसमें जब हम आए तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, वी हैव डेवलप्ड द प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट दैट्स ओवर, द प्रोडक्ट ओरिएंटेशन दैट इज अगेन ओवर, द न्यूअर कॉन्सेप्ट इज सेल्स ओरिएंटेशन। यहाँ हम आ गए कि यार सेल्स कैसे करेंगे भाई, प्रॉब्लम ये रहेगा कि प्रोडक्ट को बेचना इज प्रॉब्लम, राइट। अब हुआ क्या कि पहले हम ये बात कर रहे थे कि यार प्रोडक्ट बनाना मकसद है, उसकी कॉस्ट को कम करना, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, फिर हमें अंदाजा हुआ कि यार प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स ऐड करना वो एक बड़ा मसला है, तो हम काफ़ी साल उस चीज़ पे काम करते रहे। अच्छा, जब हम उस स्टेज से निकले तो हमें थोड़ा सा अंदाजा हुआ कि यार प्रोडक्ट बना लेना और उसके फीचर्स ऐड कर लेना, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो ये है कि इस प्रोडक्ट को बेचना कैसे, हाउ वुड वी सेल दिस प्रोडक्ट, देयर वाज अ चैलेंज फॉर द कंपनीज, राइट। तो फिर हमने क्या किया, हमने सारे का सारा फोकस चीज़ों को बेचने पे लगा दिया। हमने बहुत सारे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया, एंड हमने उनको कहा कि यार गो इनटू द मार्केट, फाइंड द कस्टमर्स एंड सेल दीज प्रोडक्ट्स, राइट। अब 5 साल 6 साल पीछे चले जाएं, मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, एक बैंक में भी काम करता रहा हूँ, और मैं लकीली या अनलकीली जो भी कह लें, सो आई वाज वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो हम क्या करते थे, हमारा जो बॉस होता था वो हमें टारगेट देता था एक महीने का, कि भाई एक महीने में, लकीली आई यूज्ड टू सेल द कार्स, आई वाज इन कार फाइनेंसिंग, राइट। सो माय प्राइमरी जॉब वाज सेलिंग द कार्स। सो मैं उसमें क्या करता था कि मैं सुबह निकलता था, अपनी बाइक उठाता था, मेरी बाइक के साथ एक बैग लगा होता था, उसमें मैं अपने सारे ब्रोशर्स, अपने डिफरेंट गाड़ियों के प्लान्स, उनकी कीमतें, उनका डिलीवरी टाइम, उनके कलर्स, उनके स्पेसिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मुझे याद भी होती थी, राइट। आई रिमेंबर द मोमेंट द सिंपल मेहरान, दैट वाज 315,000, 3,15,000 रुपये की मेहरान आया करती थी।
and the Cultus was 545,000 only. 5,45,000 की Cultus होती थी. City there was 719,000. 7,19,000 रुपए की वो होती थी. 8,24,25,000 रुपए की एक सिलाई हुआ करती थी. So I still remember all those prices, right? उनके colors, metallic, non-metallic, 5-10,000 रुपए आप metallic color पे ज़्यादा हुआ करता था. उनके delivery times और उनकी वो उनके शोरूम्स जो इधर कैनाल रोड पे हैं, इधर उधर जेल रोड पे हैं. तो वी यूज्ड टू विजिट ऑल दोस. सो द फोकस वाज सेल्स ओरिएंटेशन. मेरी बात समझ आ रही है सब लोगों को? Yes, sir. सो हमें ये लगा कि यार बैंक हमने बना लिया, बैंक के पास पैसा है, मुझे कस्टमर ढूंढने हैं, मुझे उनको फाइनेंस करना है, मैं अपना पैसा लोगों को दूंगा, राइट? और उसके अगेंस्ट मैं इंस्टॉलमेंट में उनसे ज़्यादा पैसा लूंगा. तो दैट्स हाउ आई कैन अर्न द मनी, आई कैन अर्न द प्रॉफिट. So the focus, aggressive focus was on sales because companies that came to know that sales is the problem, not the product. तो उसमें बहुत सारे लोगों को हायर किया गया, सेल्स टीम्स बनाई गई, उनको मार्केट में छोड़ा गया, कस्टमर्स को ढूंढा गया, उनकी नीड्स को देखा गया और उनको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की गई. अच्छा फाइन, द थिंग्स वर बेटर कि जी सेल्स ओरिएंटेशन होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी कोई मजे का काम नहीं हो रहा था, राइट? कंपनीज वर नॉट ओके, कंपनीज वर नॉट सेटिस्फाइड. दे केम टू नो कि यार अभी भी कुछ चीज़ मिसिंग है, अभी भी किसी चीज़ के अंदर कोई एक प्रॉब्लम है, या ये काम ठीक नहीं है. दिस इज वेरी हार्ड टू फाइंड अ कस्टमर कि जी मैं जाऊं, मैं लोगों के डोर स्टेप पे जाऊं, मैं लोगों के दफ्तरों में जाऊं, मैं लोगों के घरों में जाऊं, राइट? और मैं उनसे पूछूं कि यार आपको गाड़ी चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए. सो दैट लुक्स बिट ऑकवर्ड एंड दैट लुक्स बिट डिफिकल्ट, द फाइंडिंग customers and visiting their homes and visiting their offices and visiting their workplaces. So that's quite difficult. So laga ki yaar, this technique that's not working properly. So there must be a newer concept, there must be a new strategy, there must be new focus, there must be a new orientation, right? So usme kya? Then the marketing orientation, there was a bit newer concept. ठीक है, तो फिर हमने सोचना ये शुरू किया कि यार करें क्या. अच्छा, जब मार्केटिंग ओरिएंटेशन का दौर आया तो हमने कहा उसमें क्या होगा. द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्स एंड परफॉर्म्स इट्स प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज व्हिच इज द नीड्स ऑफ द बायर ड्राइविंग इट ऑल एंड विद द सैटिस्फैक्शन ऑफ द बायर एज द मेन एम इज द मार्केटिंग ओरिएंटेशन. सो क्या डिफरेंस हो सकता है, आप लोग मुझे ये बताएं कि मार्केट ओरिएंटेशन में और जो पिछली 3 ओरिएंटेशंस मैंने आपको बताई हैं, देयर वाज प्रोडक्शन ओरिएंटेशन, there was a product orientation, there was sales orientation, and it's now the most modern and newer concept is marketing orientation, right? तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स हम पीछे फेस करते आए हैं, वो मार्केटिंग ओरिएंटेशन ने कैसे सॉल्व किए होंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? सर जब हमने उनकी जो नेसेसिटीज थी और जो उनको चाहिए थे प्रोडक्ट में, जब वो उनको देना शुरू हुआ तो वो उसको हेल्प किया, बजाय इसके कि हम प्राइस और उस पे करते हैं. हमने जब उसकी मार्केटिंग, am I wrong? हाँ, that's great, you're very right, carry on. तो फिर जब हमने उनकी नीड्स और उस पे चीजें मार्केटिंग करना ज्यादा शुरू की तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हुए और वो ज्यादा उनके लिए भी ज्यादा फिजिबल था और हमारे लिए भी फिजिबल था. That's तो वो great, इससे दोनों को that's very nice. हनान, आप मुझे बताइए कि आयशा क्या कह रही हैं और आपका क्या ख्याल है कि मार्केटिंग ओरिएंटेशन हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस ओरिएंटेशंस? Where is Hanan? सर आयशा की आवाज कट रही थी. आयशा की आवाज कटी, समय छोड़े, मेरी आवाज तो नहीं कट रही ना? सर आपकी भी थोड़ा इंटरनेट थोड़ा सा खराब है आज मेरा. बेबी हो सकता है. आपको मेरा सवाल समझ में आया कि नहीं हनान, ये बताइए. नहीं सर, रिपीट कर. सवाल ये था कि हमने पीछे 3 ओरिएंटेशंस पढ़ी ना. जी. हमने प्रोडक्शन ओरिएंटेशन की बात की, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन की बात की, सेल्स ओरिएंटेशन की बात की. अब हम एक चौथे और आखिरी और मॉडर्न ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, व्हिच इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन. ऐसे ही है? जी सर. अच्छा, अब पिछली 3 ओरिएंटेशंस में we were feeling some problem because companies they were not okay with these orientations. क्योंकि यार यहाँ कोई there is missing link. We
cannot work properly. तो फिर जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन हुई होगी उसमें वो जो मिसिंग लिंक था वो क्या था, राइट? वो क्या डिफरेंशिएशन बनी होगी इस ओरिएंटेशन की पिछली 3 ओरिएंटेशन से? दैट्स माय क्वेश्चन। What happened? Why are you not speaking? Hanan, is there any problem? सर समझ नहीं आया। Okay, no problem. Usama, it's your turn, boy. सर आई थिंक सर जो सा आज अगर देखा जाए तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये ही होगी हमारे पास, हम फिर सारे मसले हल कर सकते हैं मार्केटिंग से। इसके अंदर सर हम 4 P's भी डाल सकते हैं, 4 C's भी डाल सकते हैं। अगर वो हमारे उसको साथ लेके चलेंगे तो हमारी जो मार्केटिंग है उससे हम बेटर अपना जो जो हम मार्केट के अंदर काम करना चाह रहे हैं उससे हम बेटर आउटपुट ले सकते हैं। सही है, सही हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अब्दुल्ला साहब, Abdullah, are you with us? Who is Abdullah? Hello, Abdullah. Oh, this not. Previously, Aisha was speaking, or Isha, who was talking to me about marketing orientation? Sir, Aisha. There was Aisha. Isha, are you with us? Yes, sir. Isha, do you understand my question? जी सर, थोड़ा थोड़ा। कुछ बताएं जरा, मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या थी? आयशा ने हालांकि क्लियर आंसर दे दिया है, तो बस देखना ही चाह रहा हूँ कि सर आवाम वो सो तो नहीं रही होगी ना? मतलब हाँ, जो कस्टमर्स की डिमांड्स और उनकी नीड्स के मुताबिक बिल, प्रोडक्ट्स बनाना एंड स्टफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं ना अब एक चीज़ को दिखाता हूँ। मैं ये एक लास्ट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मुझे इसको हाईलाइट करने दीजिए सो दैट you people can here it is, this one then I have this, you know, कौन पढ़ेगा? मुझे अब पढ़ के सुनाएगा उसामा। उसामा, ये जो 3 लाइनें मैंने हाईलाइट की हैं, ये नीचे वाली, इसको जरा पढ़िएगा प्लीज। They can be the जी सर, प्लीज। they can be grouped according to common needs and wants, and the organization can produce a specifically targeted marketing package that best suits the needs of one group, thus increasing the chances of satisfying that group and retaining its loyalty. Loyalty. So that is the crux of this marketing orientation. That is what the companies are looking for, right? बिकॉज पिछले 3 ओरिएंटेशंस में प्रॉब्लम ये था कि हम एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, हम एक अच्छा प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, जिसकी हम मार्केटिंग डेफिनेशन में बात करके आए, प्रॉफिटेबिलिटी, रिलेशनशिप, लॉयलिटी, एक्सचेंज प्रोसेस, ये हमने डेफिनेशन में बात की। तो डेफिनेशन तो उस चीज का क्रक्स होता है ना, राइट? तो उसके बाद हम जब उसमें आए तो वो डेफिनेशन को हम मीट नहीं कर पा रहे थे पिछली 3 ओरिएंटेशंस में, क्योंकि एक्सचेंज प्रोसेस नहीं था। क्यों? कि कस्टमर खुश नहीं था। क्यों? कि कस्टमर, हमें पता नहीं था कस्टमर को क्या चाहिए। तो देयर वाज अ मिसिंग लिंक। तो फिर मैनेजर्स ने दे सैट टुगेदर, दे केम अप विद एन आइडिया दैट better we should first approach the customers what really they want, what is their need. Let's study their needs first. Let's try to identify their needs. Let's try to anticipate their needs. Once we have gone through the needs very clearly and we came to know that these are the right needs of these consumers of the target market, then we should try to design the products according to those needs.
So once customers, they would be told that this is the product that is rightly designed for you according to your products, it would be easy to understand him or her that this is a right product for me, and that would be easy for him or her to buy that product, and that would be easy for the companies to sell that product, so that the customers, they can become loyal customers, and the profitable relationship that could be generated between company and the customers. That's how the marketing orientation is. So is this clear, everybody now? जी सर, पर आपकी ना आवाज बीच बीच में कट रही है। आई एम सॉरी, ये क्यों कट रही है मुझे नहीं पता, मैं तो बड़े जोर से बोल रहा हूँ। अच्छा राइट, एनीवेज इन तीन, अब ठीक है बेहतर, इन तीन चीजों ने हमारा मकसद जो है वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की। एक्सक्यूज मी सर आप वही बात कर रहे हैं ना कि मतलब कि हम लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स को चूज करें, उनको अपनी जोन सा भी हमने चीज मार्केट में देनी है, पहले उनसे टेस्ट करवा के फिर बाद में दें कि उनका ओपिनियन क्या है। हाँ हाँ, ओपिनियन क्या है, और दूसरा ये नहीं, अब देखिए ना आप, अब देखिए उसामा, आपको गाड़ियों का शौक है, आपने गाड़ी रखी भी होगी, आप गाड़ियां खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन कभी कोई गाड़ियों की कंपनी आपके घर तो नहीं आई होगी उसामा से मिलने के, उसामा यार व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू रियली लाइक? जी सर, बिल्कुल ऐसे नहीं। कभी नहीं आई ना। और ना सिर्फ आपके घर Yes, कभी नहीं आई होगी, वो आपके पूरे मोहल्ले में कभी किसी के पास नहीं आई होगी, बिल्कुल सर। ठीक है, वो आपके पूरे शहर में कभी किसी के पास नहीं आई होगी। ऐसा ही है ना। यस, लेकिन फिर बिल्कुल सर। हो रहा क्या है, जब आप शोरूम पे जाते हैं, अब बहुत सारी नई गाड़ियां आना शुरू हो गई हैं, आप जाते हैं तो वाई आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू कार, वाई आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू मॉडल? बिकॉज कंपनीज का रिसर्च का प्रोसेस ऑन गोइंग होता है, एंड दे नो, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल कि यार ये एशियन लोग हैं, इनकी गाड़ियां किस तरह की होनी चाहिए, इनके रोड्स क्या हैं, ये गाड़ियों से इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इनको इंजन किस तरह का चाहिए, ये किस तरह की गाड़ियों की शक्ल पसंद करते हैं। जो आपकी कुछ उनके स्टैंडर्ड मॉडल होते हैं, ग्लोबल मॉडल्स होते हैं। आप यूएस में भी जाएंगे तो आपको प्रियस वहाँ भी मिलेगी, और वो प्रियस बिल्कुल ऐसी होगी जैसी यहाँ आपके पास आई है। जो जापान ने जो यूएस में भेजी है प्रियस, वही प्रियस उसने आपको भी भेजी हुई है, क्योंकि आपने उसको वहाँ से इंपोर्ट किया है। कुछ मॉडल्स होंगे वो लोकलाइज्ड होंगे, जो पाकिस्तान में चलते होंगे, इंडिया में उसकी शेप डिफरेंट होगी, अमेरिका में उसकी शेप डिफरेंट होगी, यूरोप में उसकी शेप डिफरेंट होगी। सो दे नो द पीपल नीड्स, दे नो द पीपल्स प्रेफरेंसेस, राइट? इसीलिए तो भाई आपको इतनी सारी गाड़ियों की रेंज अवेलेबल है जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं। जब आप टेलीविजन बाय करने जाते हैं तो टेलीविजन की इतनी सारी रेंज अवेलेबल है। आज से 30 साल पहले पीछे चले जाएं, मुझे याद है जब मैं गांव में रहता होता था, ठीक है, हमारे गांव में बिजली भी नहीं हुआ करती थी भाई। हम ट्रैक्टर को ऑन करके, ट्रैक्टर हुआ करता था, उसको ऑन करके उसकी बैटरी पे एक ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन लगाते थे। जो मेरे एक ताया जी सऊदी अरब से जब वो आए थे वापस, तो वहाँ से एक टेलीविजन लेके आए थे। वो छोटा सा टेलीविजन था, कोई हार्डली 20-21 इंच का, और देयर वाज तोशिबा कंपनी का वो टेलीविजन था, और वो ब्लैक एंड वाइट था। और उस पर वो लगा के जो पुराने ड्रामे, आप लोगों को पता है, गेस्ट हाउस और पतझड़ और करमदाद वाला अंधेरा उजाला ड्रामा, ठीक है, इनके नाम आपने सुने होंगे, मुमकिन शायद इनमें से कोई ड्रामा आपने देखा भी हो, ऐसे ही। सर इनमें से कुछ के नाम सुने हैं लेकिन देखा नहीं है सर, देखा कभी नहीं है, नाम थोड़े सुने हो। थोड़े थोड़े से ये पुराने ड्रामे। उसके अलावा हॉकी, बड़ी हॉकी के मैचेस, हॉकी के टूर्नामेंट्स बड़े हुआ करते थे, तब क्रिकेट इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, राइट? तो हॉकी के मैचेस लोग देखा करते थे, और वो पूरा आधा गांव आके, आपके बड़े घर हुआ करते थे, सहन में बैठ के ओपन बाय टीवी रख के एंटीना लगा के वो देखा करते थे। तब टीवी के लिए क्या क्राइटेरिया हुआ करता था, व्हाट कस्टमर वांट्स व्हेन ही और शी वाज विलिंग टू बाय टेलीविजन। वो कहता था कि यार टेलीविजन कलर है या ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, दैट वाज द क्राइटेरियन। either you are buying a color TV or a black and white TV. आज का टेलीविजन, दैट इज स्मार्ट टेलीविजन, दैट इज डिजिटल टेलीविजन, राइट? और आज से 30 साल के पहले टेलीविजन में क्यों फर्क है? क्योंकि वो लोग चले गए, अब लोग बदल गए, अब लोग की नीड्स बदल गई, आपकी कंपनी से एक्सपेक्टेशंस बदल गई, आपका लाइफस्टाइल बदल गया, राइट? तो जब कंपनीज ने आपको स्टडी करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि यार ये लोग तो बड़े मॉडर्न हैं, ये पढ़ लिख गए हैं, इंटरनेट आ गया है, राइट, इनका लाइफस्टाइल बड़ा बदल गया है, ये बिजी लोग हैं, इनको तो स्मार्ट टेलीविजन चाहिए, राइट? तो फिर डिजिटल टेलीविजन, स्मार्ट एलईडीज और ये सारी चीज़ें आना शुरू हो गई। सो दिस हाउ
When you change, companies change their products accordingly. That is the marketing orientation. Is it clear now? यस सर। सर इसके अंदर ये भी आ सकता है ना कि इनोवेशन बहुत आई है पिछले दौर से, अब Innovation, आइडियाज बहुत आ गए हैं, स्किल्स बहुत आ गए हैं। innovation क्यों आई है? Let me ask you a question. Innovation क्यों आई है? सर क्योंकि लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, लोगों की नीड चेंज हो गई है। हमारी आप लोग भी तो बदल गए हैं ना, राइट? टारगेट मार्केट भी तो बदली है ना, राइट? आपका लाइफस्टाइल बदला है, आपकी नीड्स बदली हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बदली हैं, तो कंपनीज इनोवेट करके आपको वो वाला प्रोडक्ट बना के देना शुरू हो गए। जो पहले वो वाले एयर कंडीशनर जनरल के बड़े जो दीवार फाड़ के दीवार के अंदर लगते होते थे एसी, अभी भी घरों में होंगे पुराने एसी, याद है? ठीक है। अब क्या है, अब ये सर यार अब आप ये जो स्प्लिट एसी है वो आपके लगा हुआ है, उसका आउटडोर कहीं छत पे दूर दराज पड़ा हुआ है। वही पहले क्या था कि इधर ही दीवार को फाड़े, उसका आउटर पीछे ही लगा होता था, उसको चूंकि उसने हीट निकालनी होती है, तो देयर वाज द आउटर साइड ऑफ द रूम, और जो उसका इनडोर था वो इकट्ठा होता था और वो उसको अंदर किया होता था, और इस तरह से एसी काम किया करता था। ठीक है। सो जब ये देखा कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, अब कौन अपनी इतनी खूबसूरत दीवार और उस पर इतना हुआ पेंट और उसका डेकोर वो सारी चीज़ें दीवारें ख़राब करता फिर, तो देयर मस्ट बी एन इंडोर एंड आउटडोर। सो हमने स्प्लिट कर दिया, देयर इज़ एन इंडोर यूनिट, देयर इज़ एन आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट को पाइप लगाएं, उसको उठा के छत पे कहीं रख दें, राइट, और इंडोर को अंदर। फिर इंडोर एसी कितने कितने खूबसूरत आने शुरू हो गए। दैट इज़ very good to see. That really suits your bedroom environment or your drawing room or your living room जहाँ पे भी आप इसको डिस्प्ले किया। फिर एसी का काम रूम को ठंडा करना नहीं, उसके 150 फीचर्स हमने उसके अंदर और डाल दिए कि यार हमने खुशबू भी डालनी है रूम में, आपने बैक्टीरिया भी मारने हैं, आपने ये भी नहीं करने देना, आपने ये भी होना है, वो आप ऑटो मोड पे चलें, आप बंद हो जाएं रात को, सुबह चल पड़े, आपने बिजली भी कंज्यूम नहीं करनी, आपने उसकी ग्रिल और उसका थ्रो और उसकी ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ हाउ कंपनीज दे keep on innovating their products again according to the needs of the customers. So sometimes companies are very smart, वो उसको लीड कर रही होती हैं। अभी ज़रूरत जो आपको 2025 में आएगी, companies they are constantly working on that. So it is 12 o'clock, right, 2 minutes above. So I think our time is up. Am I right? सर आप ये जो रिकॉर्ड करते हैं लेक्चर्स, ये कहाँ पे अवेलेबल होंगे? Let me talk to your college administration कि ये आपका कोई वेबसाइट बना हुआ है, ये क्या करते हैं, या फिर मैं उसको सिंपल अपने YouTube चैनल पर तो डाल ही सकता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है। Right. So should we stop here? Right. Thank you very much. I'm going to wind up my today's. Abdullah entered the waiting room. Abdullah, you are a bit late. Why? So the time is up. I'm going to wind up a meeting. So thank you very much for the class. Please try to be, online. So that we can have a better understanding. Thank you very much. So. थैंक यू सर।